Good afternoon, students. Now, today we start part number 7, metallurgy. In previous lecture, we studied about specific metallurgy of copper. Now, today we start specific metallurgy of aluminium. So, metallurgy of aluminium. Important ores. First one is Al2O3.2H2O, means bauxite. Next, second one is Al2O3.H2O. 2 means bauxite, 1 means dispore. Next, Al2O3 means alumina or corundum. Al2O3.2H2O bauxite, Al2O3H2O dispore. अगर 2 H2O लगता है प्यारे विद्यार्थियों तो होता है बॉक्साइट, एक H2O लगता है तो डाइस्पोर, कोई भी H2O नहीं हो तो एल्युमिना, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके पास Na3Al_F6 मींस इसको बोलते हैं आप क्रायोलाइट. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट ओर्स आर 4. सम अदर इंपॉर्टेंट ओर्स आर माइका और क्ले. व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ माइका? K2O, जिसको आप अभ्रक भी कहते हैं, माइका मीन्स अभ्रक, ठीक है. K2O Al2O3 डॉट SiO2 डॉट H2O. यहां हो जाएगा 3, यहां 2, 3 into 2 6, यहां लग जाएगा 6. दिस इज फॉर्मूला ऑफ माइका. नाउ क्ले में K2O फिनिश तो बन जाएगा आपके पास Al2O3 डॉट SiO2 डॉट H2O. Here 2 and here be 2. This is clay. CLAY clay. This is clay. This is mica. Na3Al_F6 is cryolite. Al2O3 is alumina or corundum. Al2O3 dispore, and this is bauxite. Now, metallurgy of aluminium divided in 3 steps. First is concentration, and concentration occurs in 3 methods. First is Hall, second is Baer, and third is Serpek. Second is electrolysis, which occurs by Hall and Hauralt method, and third one is purification. This is occurs by Hoop method, but this process is not in class 12th course. So can't we study in this portion? We studied about concentration and electrolysis. First topic is concentration. देखो दोस्तों, जो concentration है, कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक चार्ट से इसको एक्सप्लेन करते हैं. तो फर्स्ट टॉपिक आपके पास है Al2O3.2H2O. इंपॉर्टेंट ओर्स कौन सा आपके पास? बॉक्साइट का कंसंट्रेशन हम 3 वेज से करेंगे: हॉल मेथड, बेयर मेथड एंड सरपेक मेथड. वी ऑब्टेन सोडियम मेटा एल्यूमिनेट. Formula of sodium meta aluminate is NaAlO2 2 mole, and by Serpek method we obtain ALN, aluminium nitride, ALN. Next, 2 mole of ALN. This method is Hall, this method is Baer, and this method is Serpek. Now, Hall method, Baer method and Serpek method are used when impurity of Fe2O3
impurity of Fe2O3 is present, then use Hall method. If Fe2O3 and silica impurities are present, then we use Bayer process, Bayer method. And if impurity of silica is present, then use Serpek method. Now, by the method of Hall and Bayer, we obtain metailluminate, and by the method of Serpek, we obtain ALN. By hydrolysis of these three methods, hydrolysis, we obtain aluminum hydroxide 2AlOH का whole thrice, and after heating, water molecules evolved and remain alumina Al2O3. So what means concentration? Concentration is process in which bauxite ores convert in alumina by three methods: Hall, Bayer and Serpek. Now, Hall method, when impurity of Fe2O3 presents and bauxite ores treated with sodium carbonate Na2CO3. In Bayer process, treated with NaOH. In Serpek process, treated with 3 carbon and 2 nitrogen. Now, this is chart of Hall, Bayer and Serpek. By this chart, we write reactions of Serpek method, Bayer method and Hall method. तो देखो दोस्तों, इसमें जो बोर्ड का क्वेश्चन था, वो बोर्ड का क्वेश्चन कैसे आया? If a ores have impurity of silica, then we use which method is used for concentration of bauxite ores? If which method have chemical reaction, then write down these chemical reactions. नेक्स्ट, तो क्या आंसर बनेगा? सरपेक, सिलिका आपके पास ओस में प्रेजेंस है, दैट मीन्स कौन सा मेथड काम में लोगे आप? सरपेक मेथड. अब सरपेक मेथड को इस चार्ट, ये जो चार्ट आपने ड्रा किया है, इस चार्ट से आप क्या कर दो, इसकी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस को आप राइट कर सकते हो. देखो कैसे. सबसे पहली रिएक्शन मेथड कौन सा? सरपेक का मेथड. तो आपने रिएक्शन बना दी Al2O3 डॉट 2s2o react with 3 carbon and 2 nitrogen, 3 carbon and 2 nitrogen and obtain 2 mole of Ln. रिएक्शन को आप बैलेंस नहीं करें, डायरेक्ट एक बार रिएक्शन को लिख दें, बैलेंसिंग बाद में देखेंगे. नेक्स्ट, दिस Aln hydrolyzed and gives aluminum hydroxide 2 mole of AlOH whole thrice. And third one is when 2 mole of aluminum hydroxide heated, then water molecules exit and remains Al2O3. Now, third one reaction is chemically balanced, but first and second reaction not balanced. For balancing, 2 aluminum, nitrogen react with hydrogen and evolve ammonia, 2 mole of ammonia. तो देखो दोस्तों, यहां पर बैलेंसिंग के लिए क्या किया आपने? 3 into 2 6, 3 into 2 6, 6 plus 6 12. तो यहां पर हाइड्रोजन हो गया 12. एल्युमिनियम 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, also balance. Now in first reaction, 2 mole of alumina, 2 mole of aluminum, N2, 3 carbon react with 3 oxygen and forms carbon monoxide and 2 mole of water out. This is balance chemical equation of Serpek method. यही सरपेक मेथड की क्या है? बैलेंसिंग इक्वेशन है. तो आप आसानी से इसको याद कर लो, आसानी से आपकी रिएक्शन सॉल्व हो जाएगी. अब देखना जरा ध्यान से, कुछ भी मेथड आपको काम में नहीं लेना. जैसे बेयर प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, हॉल की आप खुद बनाने की कोशिश करें. सरपेक में बना चुका हूं, बेयर भी मैं बना रहा हूं. देखो कैसे, आपको दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल चार्ट से चलो आप. तो जैसे एल्मुना है, एल्मुना की ये तो कब काम में लेना है? जब इंप्योरिटी होती है तब. ठीक है, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं करना इसको. तो एल्मुना, ये बॉक्साइड ओर्स जब NaOH से रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा. तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन होगी आपकी कौन से मेथड की? बेयर प्रोसेस की. बेयर प्रोसेस क्या किया दोस्तों आपने? Al2O3 डॉट
2H2O ट्रीटेड विद NaOH। जैसे ही NaOH के साथ ट्रीट करेगा क्या बनेगा? मेटा एल्युमिनेट, 2 मोल ऑफ NaAlO2। नाउ इन सेकंड केस दिस सोडियम मेटा एल्युमिनेट 2 मोल ऑफ NaAlO2 ट्रीटेड विद हाइड्रोलाइसिस मींस H2O। तो क्या निकलेगा आपका बाहर? तो निकलेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो हो गया 2 मोल ऑफ AlOH का होल थ्राइस। नाउ वापस थर्ड रिएक्शन तो कॉमन है सब में, तो 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हीटेड, तो यहां से क्या बाहर निकल गया? Al2O3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स आपका बाहर चला गया। ये आपकी केमिकल रिएक्शन हो गई। थर्ड रिएक्शन तो बेटा बैलेंस ईयर है, अब इसको आपको बैलेंस करना है। तो आप एक काम करो, पहले फर्स्ट रिएक्शन को बैलेंस कर लो। देखो यहां सोडियम कितना है? 2, यहां लगा दो 2, तो सोडियम आपका 2 बैलेंस हो गया, एल्युमिनियम 2 बैलेंस ही है। नेक्स्ट हाइड्रोजन देखो बेटा कितना है, क्योंकि यहां से पानी आपको बाहर निकालना है। हाइड्रोजन हो गया 4 + 2 6, तो आप क्या कर दो 3H2O आपका एग्जिट हो गया। अब सबसे ज्यादा कौन है इसमें रिपीट हुआ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को चेक कर लो, बैलेंस ही रिएक्शन। ऑक्सीजन कितना है? 2 + 3 5, 5 और 2 7, यहां हो गया आपके पास 4 + 3 7, दिस इज बैलेंस। अगली रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन में आपको ध्यान रखना, जो ऐड कर रहे हो वही आपका क्या होगा? एग्जिट होगा। NaOH ऐड किया, NaOH एग्जिट हुआ। Na2CO3 किया, या तो CO2 या फिर Na2CO3 एग्जिट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो चलो यहां पर आपका 2Na, तो आप 2NaOH को वापस एग्जिट कर दो। देखो मेरे हिसाब से बैलेंस है, आपके हिसाब से बैलेंस होनी चाहिए। Na कितना भाई? 2, Na कितना है? 2, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2। नेक्स्ट हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन कितना? 3 × 2 6, और ये आपका 2 8, तो यहां लगा दो 4, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन चेक कर लो, 2 × 2 4, 4 और 4 8, यहां पे हो गया बेटा 6 और 2 8, दिस इज ऑल्सो बैलेंस। ठीक है, दिस इज सरपेक मेथड एंड बेयर्स मेथड। तो हमने आज स्टार्ट किया एल्युमिनियम, इंपोर्टेंट ओर्स, बॉक्साइट, डाइस्पोर, एल्मुना या कोरंडम, क्रायोलाइट, उसके बाद माइका, उसके बाद क्ले। नेक्स्ट क्या है आपके पास? एल्युमिनियम का मेटलर्जी किसमें? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कंसंट्रेशन, सबसे पहला पार्ट क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, होल, बेयर एंड सरपेक। होल का मेथड यूज करना है जब इंप्योरिटी Fe2O3 की हो, बेयर का करना है जब Fe2O3 प्लस सिलिका की हो, और सरपेक का स और सिलिका का भी स, SS। ठीक है, सिलिका की इंप्योरिटी हो तो सरपेक ले लो। करना क्या है? बॉक्साइट और Al2O3.2H2O, उसमें होल और बेयर में तो क्या बनेगा आपके पास? मेटा एल्युमिनेट बनेगा, NaAlO2। क्या क्या डालोगे? Na2CO3 और NaOH। बट सरपेक में क्या बनेगा? एलन बनेगा, जिसमें 3 कार्बन और 2 नाइट्रोजन से रिएक्ट करा दो। मेटा एल्युमिनेट और एलन का हाइड्रोलाइसिस करा दो, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट कर दो, पानी बाहर चला जाएगा, और क्या बनेगा आपका? एल्युमिना आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपकी केमिकल रिएक्शंस हो गई, और ये आपका क्या? कंसंट्रेशन कंप्लीट। नेक्स्ट सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस किससे होता है? होल एंड हाउराल्ट के मेथड से होता है। तो दिस प्रोसेस अकर्स बाय हॉल एंड हाउराल्ट प्रोसेस। इन हॉल्ट एंड होराल्ट प्रोसेस क्या करना? आपको एक बड़ा सा टैंक ले लेना है, जो आपका आयरन का मेड होगा। नेक्स्ट, इसके अंदर का क्या होगा? आपके पास कोटिंग होगा, अंदर की तरफ कोट होगा, कार्बन कोटिंग होगा। ये हो गया आपका कार्बन कोटिंग। कार्बन का C और कैथोड का भी C। कार्बन कोटिंग किसका एक्ट करेगा? किसकी तरह एक्ट करेगा? कैथोड की तरह। ना बीचों बीच इसमें क्या होगी? यहाँ पर ग्रेफाइट्स की रोड होगी, ये होगी ग्रेफाइट्स की रोड। ये होगी आपके पास क्या? ग्रेफाइट रोड। और वो अगर कैथोड का काम कर रही है तो ग्रेफाइट रोड किसका काम करेगी? एनोड। सब बच्चों को पता है इंप्योरिटी हमेशा एनोड पर ही कलेक्ट होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, वायर से कनेक्ट कर दो इसको, ये आपने वायर से कनेक्ट कर दिया। नाउ कंसंट्रेशन से हमें क्या प्राप्त हुआ? एल्युमिना।
इलेक्ट्रोलाइसिस की कंडीशन क्या है? ऑलवेज एक्वस और मोल्टन कंडीशन। तो यहां पर एक्वस और मोल्टन Al2O3, एल्मुना को आप इसमें डिप कर दो, यह आ गया आपका एक्वस Al2O3। बट इस एल्मुना का इलेक्ट्रोलाइसिस हॉल और हेराल्ड के मेथड से पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 23 केल्विन। इतने हाई टेम्परेचर पर इलेक्ट्रोलाइसिस कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आप इसके मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर दो, इसके मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर दो आप? डिक्रीज। फॉर डिक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट एडेड क्रायोलाइट विद फ्लोरस्पार। ठीक है, तो यहां पर आप एक तो क्या मिला दो? क्रायोलाइट प्लस फ्लोरस्पार, मीन्स ये तो बन गया आपका Na3AlF6 प्लस ये बन गया आपका CF2, ये आपने एडेड कर दिया। क्रायोलाइट क्या करेगा? इसके मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करेगा। और फ्लोरस्पार का काम क्या है? जो इसकी थिकनेस है, जो इसकी आपके पास लेयर है, लेयर को ये क्या करेगा? रबिंग करेगा, और लेयर की रबिंग से वो कैसी हो जाएगी? थिन लेयर हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसके क्या करता है? थिकनेस को कम करता है, और ये क्या करता है? इसके मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है। और मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करके कितना कर देगा? 1173 केल्विन कर देगा। अब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस पॉसिबल है। Electrolysis occurs in Hall and Heroult method, in which one iron tank is used. This is coated by carbon, and carbon is act as cathode. Graphite rod act as anode. Aqueous alumina dip in this spot, but electrolysis not possible because melting point of this alumina is very high, 23 Kelvin. For decreasing melting point added cryolite and fluorspar. बोर्ड का क्वेश्चन रह चुका है ये। What role play cryolite in metallurgy of aluminium? तो क्या करता है ये? इसके मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है, और कितना कर देता है? 1173 केल्विन। नेक्स्ट एक बात और सुनो, यहां से जो प्योर मेटल आपको ऑब्टेन होगी वो अपर साइड में होगी। ठीक है, अपर साइड में होगी, तो जैसे जैसे मेटल बनती है उसमें से हीट लॉस हो सकता है। तो हीट लॉस को आपको प्रिवेंट करना है, और प्रिवेंट करने के लिए आप इसमें क्या डाल दो? कार्बन पाउडर डाल दो। क्या ऐड कर दो आप इसमें? कार्बन का पाउडर ऐड कर दो। तो कार्बन पाउडर का ऐड करने का मीन्स क्या है? हीट लॉस को रोकना। ये क्या करेगा? हीट का जो लॉस है, हीट लॉस को क्या कर देगा? ये डिक्रीज कर देगा। नाउ इसमें अब केमिकल रिएक्शंस क्या हो सकती है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सबसे पहले जो एल्मुना है वो एल्मुना डिसोशिएट होगा। एल्मुना डिसोशिएट होगा किसमें? एल्युमिनियम में प्लस ऑक्सीजन में। एल्मुना पर चार्ज कितना होता है? +3। ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है? -2। यहां से कितना एल्युमिनियम है? 2। यहां कितना है? ये 3। हो गया। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको पता है एनोड और कैथोड है, तो एनोड और कैथोड पर तो आयन कलेक्ट होंगे, तो पहले आप बना दो एनोड, बिकॉज जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वो किस पर होती है? हमेशा एनोड पर होती है। नेक्स्ट दूसरा क्या बना दो आप? कैथोड, और कैथोड पर ऑलवेज क्या होता है आपका? रिडक्शन होता है। ये हो गया आपका रिडक्शन। ठीक है, ऑलवेज ध्यान रखना ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? जो माइनस वाला है, बिकॉज उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है। प्लस वाला तो पहले से क्या दिखाता है? अपने आप में कमी दिखाता है। ठीक है, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? हमेशा सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता। तो हमेशा जो प्लस वाली प्रॉपर्टीज है, प्लस वाला आयन है, केटाइन है, उसको आप कैथोड पर रखें, और माइनस वाले को एनोड पर रखें। नेक्स्ट, तो ये आपका बन गया 2 एल्युमिनियम +3। अब देखो कैथोड रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड? 6। तो ये हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन, और इससे आपका क्या ऑब्टेन हो गया? एल्युमिनियम मेटल ऑब्टेन हो गया। बट ये 6 इलेक्ट्रॉन आपको कहां से ऑब्टेन होंगे? तो देखो जो ये आपका एनोड है, एनोड किसका बना हुआ है? आपका ग्रेफाइट की रोड्स का। ग्रेफाइट मतलब कार्बन। तो यहां पर 3 ऑक्सीजन है, ये कार्बन से एक तो करेगा अनसफिशिएंट अमाउंट में, और एक करेगा सफिशिएंट अमाउंट में। और ऑक्सीजन पर चार्ज कितना? -2। अनसफिशिएंट अमाउंट में रिएक्ट करके बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, +2 इलेक्ट्रॉन को एग्जिट कर देगा।
सफिशिएंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CO2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिलीज। 4 + 2 कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन आपको यहां पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन हो गई, सिंपल सी केमिकल रिएक्शन। एल्युमिना टूटा एनोड और कैथोड पर। कैथोड पर आपको क्या ऑब्टेन हुआ, एल्युमिनियम मेटल, और एनोड पर क्या प्राप्त हुआ आपको, इलेक्ट्रॉन्स। याद रखें, ये जो आपके पास एनोड है ये किसका बना हुआ है, ग्रेफाइट का। ये बना हुआ किसका, ग्रेफाइट का। और आप क्या देख रहे हो, इस कैथोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक तो हो रहा है कंप्लीट और एक होता है आपके पास अनकंप्लीट ऑक्सीडेशन, पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन से क्या मिल रहा है आपको, एल्युमिनियम। तो याद रखना, जब 1 kg एल्युमिनियम आपको ऑब्टेन होगा तो उसमें 0.5 kg जो कार्बन है वो क्या होगा आपके पास, वो डिप्लेक्ट हो जाएगा। डिप्लेक्ट कह दो, या आप कह सकते हो ब्रोक कह दो, या कह दो एक्सपेंड हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो 1 kg एल्युमिनियम के फॉर्मेशन में कितना, 0.5 kg जो कार्बन है वो एक्सपेंड हो जाएगा। ये हो गई आपकी पहली टाइप की रिएक्शंस। अब दूसरा देखो इसका अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड क्या है, क्रायोलाइट के रोल को तो आपने लिया ही नहीं। एक रिएक्शन तो ये, अब देखो बाई क्रायोलाइट दूसरी रिएक्शन, तो ये रिएक्शन स्टार्ट करेगा क्रायोलाइट खुद, बिकॉज वो मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर रहा है। Na3AlF6 डिसोशिएट होगा किसमें, 3NaF में, प्लस यहां से बन जाएगा आपका AlF3 बन गया। एक तो कॉमन आयन हो गया, एक एल्युमिनियम मेटल हो गई। फिर यहां से आपका जो AlF3 बना है ये वापस आयनों में डिसोशिएट होगा, एल्युमिनियम +3 फ्लोरीन माइनस हो गया। अब यहां से आपको एल्युमिनियम ऑब्टेन होगा, तो एक बना दो आप एनोड, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइसिस है। एक बना दो आप क्या, कैथोड। एनोड पर कौन, माइनस वाला, तो 3 फ्लोरीन। कैथोड पर कौन, तो प्लस वाला, एल्युमिनियम। अब ये इलेक्ट्रॉन देगा फ्लोरीन +3 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा, एल्युमिनियम मेटल बना देगा। तो ये तो एल्युमिनियम मेटल बन गई, पर दुनिया में फ्लोरीन क्या है भाई, तो इसको तो बैलेंस कर लो। फ्लोरीन हमेशा किस फॉर्म में बाहर आता है, फ्लोरीन गैस के रूप में। तो ये आप फ्लोरीन गैस लोगे तो 3 लेना पड़ेगा, तो 6 हो गया। तो यहां पर भी क्या डाल दो आप, 6। यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन, 6। तो यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन, 6। तो यहां पर 2 मोल, और ये एल्युमिनियम बन गया। तो कैथोड पर आपका एल्युमिनियम ऑब्टेन हुआ, पर किससे, क्रायोलाइट से। बट अभी किससे आपको ऑब्टेन करना है, एल्युमिना से। तो देखो, जो एनोड पर फ्लोरीन गैस आपको ऑब्टेन हुआ, ये फ्लोरीन गैस एल्युमिना से रिएक्ट करेगी। तो नाउ अब क्या होगा, देखो एल्युमिना रिएक्ट करेगा किससे, फ्लोरीन गैस से। तो जैसे ही एल्युमिना फ्लोरीन को देखेगा क्या बना देगा, AlF3 प्लस ऑक्सीजन गैस यहां से एग्जिट हो जाएगी। हो गया आपका, बैलेंस करना है कर दो, यहां लगा दो 2, तो यहां लग जाएगा 4, प्लस ये हो गया 12, तो ये हो गया 6 बन गया। बट आपको ऑब्टेन क्या है, AlF3। ये AlF3 इसी तरह से डिसोशिएट होगा, एनोड पर फ्लोरीन बनेगी, कैथोड पर एल्युमिनियम बनेगा। तो एक तो क्रायोलाइट से आपको एल्युमिनियम ऑब्टेन हो गया, और सेकंड मेथड इसी में AlF3 वापस टूटा और किससे, एल्युमिना से क्या बना दिया उसने, एल्युमिनियम बना दिया। ये आपके 2 प्रोसेस है जो हॉल और हेराल्ट मेथड के केमिकल रिएक्शंस है। आप बोर्ड में ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। बहुत रिएक्शंस में से कोई सी भी रिएक्शन का आप यूज कर सकते हो। ये एल्युमिनियम का मेटलर्जी कंप्लीट। यहां से जो एल्युमिनियम प्राप्त होता है दोस्तों, वो होता है लगभग 97.8% प्योर। और ये जो एल्युमिनियम आपको ऑब्टेन हुआ है, इसका फिर प्यूरिफिकेशन कर दिया जाता है किससे, हूप के प्रोसेस से। ये आपकी मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट मेटलर्जी स्टार्ट करते हैं अपन जिंक की। थर्ड, देखो कॉपर की मेटलर्जी हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। दूसरा आपके पास कौन सी स्टडी की आज स्पेशल मेटलर्जी में, एल्युमिनियम की मेटलर्जी स्टार्ट की, जिसमें हमने पढ़ा हॉल, बेयर एंड सरपेक। एक पढ़ा हॉल और हेराल्ट का मेथड। नेक्स्ट अगला स्टार्ट करते हैं थर्ड मेटलर्जी, मेटलर्जी ऑफ जिंक। मेटलर्जी ऑफ जिंक। तो जिंक की मेटलर्जी में क्या होगा दोस्तों, पहली बात तो वही इंपॉर्टेंट ओर्स। फर्स्ट वन इज ZnS, ये होता है आपका क्या, जिंक ब्लेंड। नेक्स्ट सेकंड प्रोसेस होता है आपका ZnCO3, कैलामाइन। थर्ड होगा आपके पास ZnO, जिसका नाम आपका जिनकाइट।
जो कि आपका जिंकाइट, ZnS जिंक ब्लेंड, ZnCO3 केलामाइन, ZnO जिंकाइट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ओर्स कौन सा? ब्लेंड मीन सल्फाइड ओर्स। तो स्टेप्स क्या रहेंगे मेटलर्जी के स्टेप? तो फर्स्ट तो वही पाउडर फॉर्म होता है, नेक्स्ट सेकंड हो गया आपका क्या? कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन में सल्फाइड ओर्स है तो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड आपका काम आ गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगी? इसमें रोस्टिंग होगी, यही आपको ध्यान रखना है। जो आपकी ये रोस्टिंग होने वाली है, तो ये जो आपका रोस्टिंग है, रोस्टिंग में क्या होगा भाई? रोस्टिंग में ये जो ZnS है, ठीक है, रोस्टिंग में क्या होगा? ये जो आपका ZnS है वो ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देगा? ZnO प्लस SO2 गैस बाहर चली जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, यहां से कभी कभी ये जो ZnS है वो जिंक सल्फेट में चेंज होता है और जिंक सल्फेट दोबारा से ऑक्सीडाइज होकर ZnO बनाता है। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, कर लो। यहां लगा दो 2, यहां लगा दो 2, जिंक 2 हो गया, सल्फर 2 तो ये भी 2, ऑक्सीजन चेक करो 4 + 2 6, तो यहां लग जाएगा आपके पास 3O2। ये लो, ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट अगली बात आ रही है आपके पास, ये ओर्स हो गया, ये तो ZnO ही है, ZnCO3। तो ये जो आपका ZnCO3 है, ZnCO3 को अगर आप गर्म करते हो तो यहां से आपका ZnO बार प्लस ये CO2 गैस एग्जिट हो जाएगी। कुल मिलाकर आपने इसको और इसको तीनों को ZnO में ही कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमें ऑक्साइड फॉर्म में ही ओर्स को लेना है यहां पर। अब ये जो ZnO प्राप्त हुआ आपका, इसका आप क्या करोगे? स्मेल्ट करोगे इसको यहां पर। नेक्स्ट प्रोसेस ध्यान दें, स्मेल्टिंग, और स्मेल्टिंग के लिए स्पेसिफिक फर्नेंस काम आएगी जिसको बोलते हैं रिटॉर्ट मेथड या कॉलम मेथड, ठीक है, या बेल्जियम मेथड, बेल्जियम मेथड, या जिसको कह सकते हो और रिटॉर्ट मेथड, रिटॉर्ट मेथड। उस रिटॉर्ट मेथड में आप क्या करोगे? ये जो आपका ZnO बना है भाई, इसको कार्बन के साथ रिएक्ट कराओगे 1673 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है। इतने केल्विन टेम्परेचर पर जब करेगा तो जिंक आपका ऑब्टेन होगा प्लस CO बार चला जाएगा। ये जो जिंक होगा ये 97 to 98% तक प्योर होगा, इतना प्योर ये होने वाला है, ये जिंक इतना प्योर आपका होने वाला है। और ये जो प्योर जिंक आपका प्राप्त हुआ है इसमें बिस्मथ की, आर्सेनिक की, एंटीमनी की ये इंप्योरिटीज रहती है और इसी को आप बोलते हो दिस इज जिंक स्पेल्टर। तो जो हमें इम्प्योर जिंक यहां से ऑब्टेन हुआ था वो क्या हमारा जिंक स्पेल्टर कहलाता है। उसके बाद प्यूरिफिकेशन हम इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से कर सकते हैं और उससे 100% आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 100% प्योर जिंक प्राप्त होगा। तो थर्ड मेटलर्जी किसका था भाई? जिंक का। मोस्ट फॉर्मूलाज, फर्स्ट इज जिंक ब्लेंड ZnS, सेकंड इज केलामाइन ZnCO3, थर्ड इज ZnO जिंकाइट। पाउडर फॉर्म, कंसंट्रेशन, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड से। रोस्टिंग में चाहे जिंक सल्फाइड हो चाहे आपका केलामाइन हो, ऑक्सीडाइज होकर या गर्म करने से क्या होगा? ZnO में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो आपका ZnO बना है ये बेल्जियम या रिटॉर्ट मेथड से कार्बन से रिएक्ट करेगा 1673 केल्विन टेम्परेचर पर और जिंक बनेगा। यही क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, कब बना हुआ जिंक 97 से 98% तक प्योर होता है पर इसको आप बोलते हो इम्प्योर जिंक, और यही क्या कहलाता है आपका? जिंक स्पेल्टर, जिसमें एंटीमनी, बिस्मथ ये सारी आपके पास इंप्योरिटीज हो सकती है। और उसके बाद प्यूरिफिकेशन का कोई खास मेथड नहीं है। फोर्थ मेटलर्जी को स्टार्ट करते हैं जिसका हम थोड़ा सा पार्ट पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट मेटलर्जी ऑफ आयरन Fe। तो इसके सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट ओर्स। फर्स्ट वन इज है Fe2O3, नेक्स्ट सेकंड वन इज Fe3O4, थर्ड इज Fe2O3.2S2O. This is hematite. This is magnetite. This is hematite, magnetite, limonite. And fourth one is FeCO3. This is siderite. And fifth is iron glance.
These are ores of iron. First is Fe2O3 hematite, Fe3O4 magnetite, next is limonite, next one is siderite and next one is iron glance. Next प्रोसेस क्या क्या है इसके, तो सबसे पहला प्रोसेस है हमारे पास पाउडर फॉर्म। नेक्स्ट सेकंड स्टेप है बेटा कंसंट्रेशन, और हर बच्चे को पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन में आयरन को पढ़ रहे हैं और आयरन का तो एक स्पेसिफिक ही होता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। और थर्ड होती है आपके पास रोस्टिंग, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं। और फोर्थ है आपके पास स्मेल्टिंग, वेरी वेरी मस्ट। स्मेल्टिंग किसमें? ब्लास्ट फर्नेस में। आरबीएससी बोर्ड का क्वेश्चन रह चुका है, ब्लास्ट फर्नेस की रिएक्शंस को एक्सप्लेन करो। 4 टाइप के रिएक्शन सेंटर्स इसमें बनेंगे। तो देखो ब्लास्ट फर्नेस की स्ट्रक्चर क्या होती है आपके पास, जनरली स्ट्रक्चर है ये, रफली अगर एक डायग्राम की बात करें हम तो इसका जो रिएक्शंस, इसकी जो आपके पास स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप की होगी। और यहां पर 4 रिएक्शन सेंटर बनेंगे। ये आपका फर्स्ट रिएक्शन सेंटर, दिस इज सेकंड वन, दिस इज थर्ड वन एंड दिस इज फोर्थ वन। टेम्परेचर ऑफ दीज रिएक्शन सेंटर्स, फर्स्ट 6 से 9 तो मीन्स 6732 973, 6 से 9। दूसरा 11 से 14 तो 1173 से 1473, थर्ड 1473 से 1573 एंड फोर्थ 773 से 2173। ये आपका टेम्परेचर है। 673 केल्विन टू 973, 1173 टू 1473 केल्विन, 1473 टू 1573 एंड 1773 टू 2173। अब इसकी नेमिंग क्या क्या है, तो सबसे पहले देखो दोस्तों, ये आपका है एडजॉर्प्शन रीजन, एडजॉर्प्शन रीजन। ये आपका थर्मल जोन है, थर्मल, या इसको आप मिडल जोन भी कह सकते हो, मिडल जोन, मिडल जोन। ये हो गया आपका एडजॉर्प्शन रीजन, ये हो गया थर्मल रीजन, ये होगा आपका मेल्टिंग रीजन, मेल्टिंग, और ये होगा आपका कंबंशन जोन, कंबंशन जोन। देखो यहां से जो रिएक्शंस है वो क्या क्या होगी, तो जो आपका एडजॉर्प्शन होगा इसमें 3 टाइप्स की रिएक्शंस होगी, या ऐसे बोल दो 3 रिएक्शंस होगी, 3 रिएक्शन, इसमें 3 टाइप्स की रिएक्शंस होगी। एडजॉर्प्शन रीजन में क्या होगा आपका, सबसे पहले 3 रिएक्शन, हेमेटाइट टू मैग्नेटाइट, नेक्स्ट मैग्नेटाइट टू FeO एंड FeO टू Fe। ठीक है, ये रिएक्शन याद करने का तरीका, हेमेटाइट मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट FeO, FeO Fe, CO को लगाइए मत, CO2 को आप रिएक्ट कराइए और CO2 को एग्जिट कीजिए। तो देखो ये हो गया CO 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 प्लस CO2 CO2 CO2। अब यहां पर क्या होगा दोस्तों, यहां 2 और 3 तो 2 3 और 2, यहां पर हो गया आपका 3। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन चेक कर लो, बैलेंस है। ऑक्सीजन चेक करो, 9 + 10, 4 + 2 10, 4 + 1 5, 3 + 2 5, all chemical reactions are balanced। हेमेटाइट टू मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट टू FeO, FeO टू Fe, और ये जो आपका Fe बना है ये कैसा होता है, स्पॉन्जी आयरन कहलाता है। ये जो आपका बना है ये क्या कहलाता है, स्पॉन्जी आयरन। नेक्स्ट केस में क्या होगा, देखो नेक्स्ट केस में थर्मल जोन में सबसे पहले फ्लक्स जो होगा आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में होता है, CaCO3। ये आपका 1273 केल्विन पर गर्म होगा, और जैसे ही गर्म होगा किस में कन्वर्ट होगा, CaO प्लस CO2 में। ये बन गया आपका क्या, फ्लक्स। दिस फ्लक्स ट्रीटेड विद और रिएक्टेड विद SiO2 सिलिका, दिस इज फ्लक्स एंड दिस इज इम्प्योरिटी, दिस इज इम्प्योरिटी। ट्रीटेड विद दिस एंड फॉर्म CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। Impurities are eject from calcium silicate kit. Now other impurities
other impurities as like carbon, phosphorus, manganese are eject by reaction of carbon. ठीक है, कार्बन से रिएक्शन करने के बाद जैसे कैसे देखो, अगर आपके पास वोलेटाइल इंप्योरिटी है किस फॉर्म में, P2O5 की फॉर्म में, Mn2O की फॉर्म में, तो ये कार्बन से रिएक्ट करती है और क्या हो जाती है, एग्जिट हो जाती है। जैसे 5 कार्बन से रिएक्ट की, यहां पर 2 कार्बन से रिएक्ट की, तो ये बन जाएगा आपका यहां से 2 फास्फोरस प्लस 5 CO, यहां से बन जाएगा Mn प्लस 2 CO। तो जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज है वो इस फॉर्म में बाहर चली जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, जो मेल्टिंग जोन है बेटा, मेल्टिंग जोन में क्या होगा, ये जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज होगा और क्या बना देगा, आपका CO फॉर्म कर लेगा, प्लस ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें 163 किलोजूल पर मोल एनर्जी क्या आपको रिक्वायर्ड होगी, 163 किलोजूल पर मोल एनर्जी आपको क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। और फाइनली होता है आपके पास कंबंशन जोन। कंबंशन जोन में क्या होगा, यहां से जो CO बना है ये CO ऑक्सीडाइज होगा तो 2 मोल ले लो बैलेंसिंग के लिए, और यहां से आपका बन जाएगा 2CO2 प्लस यहां से आपकी एनर्जी रिलीज होगी 393.5 किलोजूल पर मोल। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक, ये हो गया एंडोथर्मिक। 4 रिएक्शन सेंटर, बोर्ड का यही क्वेश्चन था 17-18 का। क्या क्वेश्चन था, ब्लास्ट फर्नेस की केमिकल रिएक्शंस को आप एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन केमिकल रिएक्शन और वेरियस जोन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। देयर आर 4 टाइप zone. First is adsorption zone in which 3 reactions are occurs, hematite, magnetite, FeO, Fe, CO plus, CO2 minus. Next, in thermal zone, calcium carbonate dissociate in CO and CO2. This CaO react with impurity and exit impurity in form of calcium silicate kit, and volatile impurities are exit from carbon, phosphorus, manganese or exit from in form of volatile form. Next, in melting zone form CO, endothermic reaction. Combustion zone form CO2 and exothermic process. By this impurities are exit in form of slug and pure metal are form in pig iron in which percentage of carbon is 4%. ब्लास्ट फर्नेस से लास्ट में पिग आयरन आपको बनता है जो लगभग 4% तक प्योर होता है। इसके बाद कार्बन की परसेंटेज अमाउंट कार्बन की जो परसेंटेज होती है उसकी बेसिस पर आयरन के टाइप और बची हुई मेटलर्जी को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहां तक आप अच्छे से स्टडी कर लें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार दोस्तों।